Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. Okay, people, we will continue with mechanical properties of fluids, and in this we are going to do Stokes law. Okay, what is basically Stokes law? So before understanding Stokes law, we need to understand what is viscous drag. ठीक है, किसी भी बॉडी को जब आप फ्लूइड में मूव करने की कोशिश करते हैं, whether you are trying to move it horizontally or vertically, it will experience a viscous drag. ठीक है, it will experience a viscous drag. So when a body, ठीक है, when a body falls through a viscous fluid, the layer of the fluid in contact with the body moves with its velocity. तो जो भी जैसा जैसा देखो ये फ्लूइड अगर मूव हो रहा है, ठीक है, विद इन द लिक्विड लेयर, तो ये वाला जो होगा इसके साथ मूव करेगा, है कि नहीं? अगर वैसा बॉडी ऐसे मूव हो रही तो लेयर ऑफ लिक्विड भी तो उसके साथ मूव करेगी. If the body is moving, then the layer of the liquid which is in contact with the body fluid will also move, है ना? ठीक है. So when a body falls through a viscous liquid, the layer of the fluid in contact with the body moves with its velocity. However, the fluid at large distance from it remains at rest. अभी समझ लो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, इसमें एक बॉडी को हम ऐसे मूव करा रहे हैं बहुत दूर, मतलब यहाँ पे तो लिक्विड रेस्ट पे है और इधर भी भाई साहब लिक्विड रेस्ट पे है कि नहीं? The liquid at far off distances from the moving body inside a fluid happens to be at rest. ठीक है. However, the fluid at large distances from it remains at rest. This produces relative motion between different layers of. तो आपका relative motion मतलब एक लेयर दूसरा लेयर जो है दोनों के स्पीड्स अलग अलग हो जाएंगे. As a result, the body experiences a viscous force. इस पे भाई साहब लगेगा एक viscous force which tends to retard its motion. और इसका मोशन भाई साहब रिटार्ड हो जाएगा. ठीक है, इस विस्कस फोर्स के चलते हम अभी तक इस प्लैनेट पे जिंदा हैं. ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेटियोर्स जो हैं अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कोलाइड करते हैं. ठीक है, लेकिन अर्थ पे एक ही मेटियोर का कोलिजन अभी तक हुआ है ऐसा मानते हैं, बिकॉज देयर आर सम क्रेटर्स विच हैव बीन लोकेटेड. ऐसा माना जाता है कि बहुत सालों पहले, सम बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, अ क्रेटर और रादर अ मेटियोर दैट बेसिकली एबल टू रीच अर्थ सरफेस, because of which the entire dinosaur species was extinct. ठीक है, इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ कि भाई साहब उस कोलिजन के चलते कि पूरा जो डायनासोर का स्पीशीज़ था वो गायब हो गया, ख़त्म हो गया, बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाया. ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे अर्थ के ऊपर होता है भाई साहब एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में जैसे ही कोई मेटियोर एंटर करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, बहुत स्पीड उसकी बढ़ जाती है. और जैसे ही स्पीड बढ़ती है, अभी एटमॉस्फेयर फ्लूइड है तो इसमें भाई साहब क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो एक बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, ये एक आग का गोला बन जाएगा और फाइनली फूक जाएगा.
ठीक है। सो जो ज़मीन पे गिरेंगे वो टुकड़े टुकड़े धूल के कण होंगे, पूरे एटमॉस्फेयर में बस अब धूल के कण ऐसे फ्लोट करते रहेंगे, ऐसा बहुतों बार होता है, ठीक है। तो मेटियोर्स आर नॉट एबल टू रीच अस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज अ फ्लूइड, इट गिव्स अ ह्यूज विस्कस ड्रैग टू द स्ट्राइकिंग मेटियोर, बिकॉज ऑफ विच, इसके वजह से क्या होगा भाई साहब, फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो वो भाई साहब एकदम गोला बन जाएगा, आग का गोला बन जाएगा, एंड फाइनली इट विल एक्सप्लोड, ठीक है। ओके, दिस रिटार्डिंग फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जितना आपका वेलोसिटी बॉडी का बढ़ेगा ये रिटार्डिंग फोर्स भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। स्टोक्स लॉ बोलता क्या है भाई साहब, जैसे मैंने आपको बोला इस एक इकलौते चैप्टर में आपको ज़्यादा डेरिवेशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कल वाला डेरिवेशन देखा वो भी सिंपल आपका भाई साहब डायमेंशंस से रिलेटेड डेरिवेशन था, इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज को रिलेटेड टू जो से वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जो रेट ऑफ फ्लो है उसका डेरिवेशन भी अगर आपने देखा डायमेंशन से, यहाँ पे भी आपका डेरिवेशन भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इकलौता फिजिक्स का चैप्टर होगा जहाँ पे डेरिवेशंस का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द बैकवर्ड विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी लिया हुआ है हमने, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v टू अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, दिस इज गिवन बाय 6 पाई विस्कोसिटी rv, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड रिटार्डिंग फोर्स, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू 6 पाई, 6 पाई इज बेसिकली अ कांस्टेंट, ठीक है, viscosity, coefficient of viscosity, radius of the spherical body and velocity with which it is moving, ठीक है। So the viscous force F acting on a sphere moving through a fluid may depend upon the coefficient of viscosity of the liquid, radius r of the spherical body and velocity v of the body. This is Stokes law, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे हमने डेरिवेशन किया हुआ है किससे, आपके यूनिट्स से, ठीक है, यूनिट्स और डायमेंशन से इसका डेरिवेशन किया हुआ है। तो अगर देखोगे, अगर फोर्स का अपन देखेंगे के रो ए, ठीक है, आर और वी सी, तो आपका भाई साहब अगर हम यहाँ पे देखेंगे रो की वैल्यू, इन सबको अगर वैल्यूज पुट अप करेंगे तो वी विल गेट के रो, ठीक है, आर वी विच इज के की वैल्यू यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुई है 6v। इसको कर सकते हैं, ट्राई तो कीजिए, ट्राई कीजिए, डायमेंशनली इसको प्रूव करना है। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 6 पाई रो आर वी। ट्राई एंड प्रूव दिस पीपल, इजी है, इजी। देखो अपन क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे, ठीक है, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशन ऑन बोथ साइड, एलएचएस में डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन है, तो ml t-2 है ना भाई साहब, ये डायमेंशन हो गया आपका, ठीक है। आरएचएस में आते हैं, 6 पाई को अगर हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू, बोलो ना बोलो, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वक्त नहीं, फोर्स, फोर्स विस्कस ड्रैग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक मिनट, F इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A D dAV/dx, ठीक है, ये माइनस में रहेगा ये, ठीक है, ओके। तो अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालते हैं, अगर हमको डायमेंशन निकालना है तो माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। सो दिस विल बी हाउ मच पीपल, F dx/A dV, समझम, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml t-2, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, L, A की वैल्यू क्या हो जाएगी, L का स्क्वायर, dV की वैल्यू हो जाएगी L t-1। तो यहाँ पे L और L भाई साहब आपका कैंसिल, ये एक L और ये एक L कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m, L की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, L रेज टू -1 एंड T रेज टू -2 -1, तो T-2 + 1, तो ये हो गया T रेज टू -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की भाई साहब ये हो गई डायमेंशन, क्लियर, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हैज दिस डायमेंशन, ओके। R की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, L, V मतलब हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब आपका कितना हो गया भाई साहब, वेलोसिटी इज LT-1, ठीक है। ये सब डायमेंशंस हमने भाई साहब निकाल लिए, ओके। लेट्स से हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी R एंड V। तो लेट्स से हमने लिखा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक कोई कांस्टेंट K, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू A, R रेज टू B, V रेज टू C, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो फोर्स का वैल्यू ml
टी माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस विल बी हाउ मच, एम एल रेज टू माइनस वन टी रेज टू माइनस वन रेज टू ए, आर आर देखो एल रेज टू बी, एंड वी भाई साहब कितना हो जाएगा भाई साहब, वी मतलब हो गया एल टी माइनस वन रेज टू सी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, एम रेज टू ए, ठीक है, एल रेज टू कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये कितना हो गया भाई साहब, एल रेज टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी बोलिए कितना हो जाएगा, टी रेज टू माइनस ए प्लस बी माइनस सी, है ना, टी रेज टू माइनस ए, नहीं प्लस बी कैसे होगा भाई साहब, टी रेज टू माइनस ए और ये हो गया आपका माइनस सी, ठीक है, एम रेज टू ए एल रेज टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी टी रेज टू माइनस ए माइनस सी, ठीक है, ये हो गया आपका किसके बराबर, एम एल टी माइनस टू। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ इक्वल बेसिस, ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 1 है कि नहीं, a की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 1, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए माइनस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, तो अगर हमने इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 2, अभी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है, अपन ने a की वैल्यू भाई साहब इतनी निकाली हुई है, अभी इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू b और c की वैल्यू भाई साहब +1, दिस इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 1, ठीक है, सो तीनों की वैल्यू क्या आ गई भाई साहब, ठीक है, तो इसका मतलब f की वैल्यू कितनी हो गई, k आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू a दैट इज 1, r दैट इज रेज टू 1 एंड v दैट इज रेज टू 1, क्लियर है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा डिराइव हुआ है कि k की वैल्यू होती है 6 पाई, तो आपका f जो विस्कस ड्रैग क्रिएट होता है 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी rv, ठीक है, 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी rv क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है, ये आपका डायमेंशन एनालिसिस है, 6 पाई रो rv, ओके, सो कंडीशंस अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड, अभी क्या ही कंडीशंस हैं जिसमें स्टोक्स लॉ आपके वैलिड होंगे, ठीक है, द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, व्हाट डू वी मीन बाय इनफाइनाइट एक्सटेंशन, एक मिनट, now what do we mean by infinite extension, the fluid through which the body moves has got infinite extension, कोई बता सकता है भाई साहब infinite extension मतलब बहुत लंबा है फ्लूइड, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से स्टार्ट हुआ इधर ही खत्म हो गया, it has to be an infinite extension, ठीक है, the body is perfectly rigid and smooth, एक rigid body और smooth body है, there is no slip between the body and the fluid, ठीक है, तो भाई साहब body और fluid में कोई slip नहीं है, ठीक है, the motion of the body does not give rise to turbulent motion and eddies, एडी करंट्स होते हैं, एडी करंट्स मतलब क्या होते हैं, हाँ जी, एडी करंट्स मतलब क्या होता है, किसी बाल्टी में आप पानी घुमा कर छोड़ देंगे तो वो जिस तरह से घूमता रहेगा उसको अपन बोलते हैं एडी करंट्स, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बॉडी को अगर आपने छोड़ा तो वो एडी करंट्स जनरेट कर दे, ठीक है, इट जनरेट्स एडी करंट्स, ठीक है, हेंस मोशन इज स्ट्रीमलाइन, तो आपका स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है, द साइज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल बट इट इज लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, दस द मीडियम इज होमोजीनियस एंड कंटिन्यूअस फॉर सच अ बॉडी, ये आपके कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, ये आपके भाई साहब क्या हैं, अजम्पशंस हैं फॉर स्टोक्स लॉ टू बी वैलिड, इन्हीं कंडीशंस में स्टोक्स लॉ आपका वैलिड होगा, ठीक है, द स्टोक्स लॉ विल बी वैलिड अंडर दीज कंडीशंस, ओके, when a body falls through a viscous fluid it produces relative motion between its different layers, ठीक है, तो एक relative motion प्रोड्यूस होता है, सुबह सुबह खाली होने जाते हैं, ओके, नहीं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग कितने क्यूरियस है मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो जो आप फ्लश करते हैं उसको कभी खोल के देखा है,
क्या है उसके अंदर? नहीं। इतने सालों से भाई साहब ये काम कर रहे हैं, लेकिन कभी इच्छा नहीं हुई कैसे वो ऑपरेट कर रहा है। वो एक बहुत एकदम एक घर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर आप देखोगे उसमें एक ऐसा ये स्फीयर सा रहता है और वो वैसा वैसे लिक्विड के ऊपर होता है। जैसे आप उसको फ्लश करते हैं तो पानी इधर से भरेगा और पानी इधर से भरेगा, ये ऐसे ही रहेगा स्फीयर, और ये स्फीयर जो है तो ऐसे आएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये स्फीयर भी ऊपर जाता जाएगा। एक टाइम आएगा जब पूरा भर गया टप बंद हो जाएगा ये, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस। ये आपका स्टोक्स लॉ के ऊपर ही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोक्स लॉ कि हाउ एक लिक्विड में अगर एक सॉलिड जाता है तो किस तरह से ये एप्लीकेबल होता है, हाउ इट इज बेसिकली अप्लाइड। व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ, साइंस सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती है भाई साहब, थोड़ा बहुत अगर आप आजू बाजू की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट मेक्स सेंस आउट हियर, ठीक है। When a body falls through a viscous fluid, it produces relative motion between its various layers. तो काफी भाई साहब relative motion produce होता है उसके relative layers में. As a result, the body experiences a viscous force. तो आपका भाई साहब viscous force which tends to retard its motion. तो आपका viscous force का भाई साहब वही impact होता है जो solid में friction का होता है, ठीक है. So it tends to retard its motion. और विस्कस फोर्स का वैल्यू आपने देखा क्या है, 6 पाई विस्कोसिटी RV, ठीक है. ऑल्सो इंक्रीजेस. अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स. देन नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड इट बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. या तो वो पूरा पूरा रुक जाएगा, ईदर इट विल स्टॉप कंप्लीटली और इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. तो समझ लो एक बॉडी नीचे गिर रही है किसी फ्लूइड में, ठीक है. इस बॉडी का भाई साहब एक वेट है जो एक्टिंग डाउनवर्ड्स हैं और साथ ही साथ इस पे एक अपथ्रस्ट लग रहा है और साथ ही साथ भाई साहब इस पे लग रहा है एक विस्कस फोर्स, ठीक है. जब ये आपका अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी, अपथ्रस्ट एंड द विस्कस फोर्स व्हेन दे आर इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी, जब ऐसा सिचुएशन अराइज होता है, सो द बॉडी ईदर स्टॉप्स और स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. देयर विल बी नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी बिकॉज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, ठीक है. आपका नेट फोर्स भाई साहब जीरो हो जाएगा. क्लियर है. अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे भाई साहब? अपथ्रस्ट निकालेंगे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ये हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट. और भाई साहब mg तो हो गया इसका वेट. और ये आपका विस्कस फोर्स कैसे निकालेंगे, 6 पाई रो r इनटू v, ठीक है. क्लियर है. सो दीज आर द थिंग्स. मतलब देखो बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उस पर लगता हुआ विस्कस फोर्स भी उतना ज्यादा होगा. बॉडी का रेडियस जितना ज्यादा होगा उस पर लगता हुआ विस्कस फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है. ये सारी तमाम चीजें हैं. द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a body while falling through a viscous medium is called as terminal velocity. इसको भाई साहब अपन बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. येलो येलो डर्टी फेलो, मुस्कुरा कहाँ रहे हो भाई साहब तुम? मजा आ रहा है पेपर देने में, इकलौते हो तुम ऐसे ही. ओके. एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी. अभी हम बात करेंगे भाई साहब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है. आपका वेलोसिटी ऐसा हो जिसमें आपकी बॉडी रुक जाए, ठीक है. मतलब ऐसी वेलोसिटी, मतलब आपका अभी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है. किसी बॉडी को आपने गिराया एक लिक्विड में तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा कि नहीं, क्योंकि उस पर कंटिन्यूसली क्या लग रहा है, अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स. उसका एक कांस्टेंट जो है वो है वेट, ठीक है. तो एक ऐसे सिचुएशन पे आएगा कि अब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. धीरे 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 उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा. ये जो वेलोसिटी का कांस्टेंट होना है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल मतलब अंत, ठीक है. तो ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी. क्लियर है. टर्मिनल वेलोसिटी में बॉडी अभी एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेगा क्योंकि उस पर लगता हुआ फोर्स आपका जीरो हो चुका है. मतलब द अपथ्रस्ट दैट हैज बीन एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द विस्कस फोर्स दैट हैज बीन एक्टिंग ऑन द बॉडी, दे आर नाउ इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. क्लियर है. दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. तो अभी हम बात कर रहे हैं भाई साहब, कंसिडर अ स्फेरिकल बॉडी है भाई साहब. तो आपका देखो यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है भाई साहब, विस्कस फोर्स, और इधर क्या है आपका वेट. तो ऑब्वियसली द बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, ठीक है. नाउ एज द बॉडी falls, the various forces acting on the body are shown. तो लेट्स से द बॉडी ऑफ रेडियस r फॉलिंग थ्रू विस्कस लिक्विड. तो इस लिक्विड की डेंसिटी है भाई साहब सिग्मा एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है भाई साहब, इसका दिया हुआ है आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. लेट p rho be the density of the body. So as the body falls, the various forces acting on that are what? वेट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका mg.
m मतलब क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर स्पेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ओके, सो अभी आप अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे W इज इक्वल टू एम जी, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। रो हो गया भाई साहब इसका डेंसिटी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज मास, और ये हो गया आपका जी। तो दिस विल बी बेसिकली वेट ऑफ द सॉलिड। अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू द, अपवर्ड थ्रस्ट कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज हाउ मच, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भाई साहब कितनी होगी, 6 पाई आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी r इंटू वी, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो अगर वेलोसिटी को अपन प्लॉट करें टाइम के साथ, ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा एक ऐसे वेलोसिटी पे आप रीच करोगे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। नाउ द वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पे आप एक ऐसे वेलोसिटी पे पहुंच गए हैं कि जहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इट विल बी स्टैग्नेंट, ये भाई साहब स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। Clearly the force of viscosity increases as the velocity of the body increases. A stage is reached when the weight of the body becomes just equal to the sum of the thrust and the viscous force. Then the body begins to fall with a constant maximum velocity, और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब terminal velocity. When the body attains a terminal velocity, u plus f is equal to w, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, आपका upthrust plus force of viscosity that will be equal to the weight of the body. इन सबको भाई साहब अगर आप ऐड करेंगे so you will get v is equal to 2/9 r रो माइनस ये हो गया भाई साहब डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सॉलिड g अपॉन आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या हो गया कि अभी आपका बॉडी जो है तो रुक गया है एक फ्लूइड के अंदर, भाई साहब एक फ्लूइड के अंदर एक बॉडी मूव कर रहा था, एक स्पेरिकल बॉडी है जिसकी मास, ठीक है, देखिए वेट इस तरफ है भाई साहब वेट, और इस पे लग रहा है भाई साहब विस्कस ड्रैग, और इस पे लग रहा है भाई साहब आपका अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा, अपथ्रस्ट वी नो इज वॉल्यूम इनटू रो इनटू जी। ये रो क्या है भाई साहब, आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इटसेल्फ। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ये हो गया अपथ्रस्ट, ठीक है। और आपका भाई साहब फोर्स विस्कस ड्रैग कितना हो जाएगा, दिस विल बी 6 पाई, ठीक है, ये हो गया विस्कस ड्रैग आर और वी, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। ये दोनों भाई साहब क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं नाउ बॉडी को। तो बॉडी हैज स्टार्टेड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब बॉडी भाई साहब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसका मतलब आपका जीरो एक्सेलरेशन है। जीरो एक्सेलरेशन कब होता है भाई साहब, वी हैव स्टडीड इन न्यूटन सेकंड लॉ कि भाई साहब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अगर जीरो होता है, इफ द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बॉडी का जीरो हो जाएगा। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द अपथ्रस्ट एंड दिस इज द विस्कस ड्रैग। अभी हम बात करते हैं इसके वेट की। वेट कितना हो जाएगा भाई साहब, m इंटू जी। अभी m इंटू जी मतलब आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी, है ना। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम यहाँ पे कितना ही हो जाएगा बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो गया आपका इंटू जी, ये हो गया आपका वेट। क्लियरम क्लियरम, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये दोनों का अगर F प्लस U अगर आपका W होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, F हो गया आपका 6 पाई आर वी, ठीक है, प्लस U की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, और ये कितना हो गया बोलो आपका 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी, ठीक है। इसको अगर हम इधर ले लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 पाई। हमारा टारगेट क्या है, इसके लिए इक्वेशन निकालना है ना, जो टर्मिनल वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिसमें अभी कोई इंक्रीज नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी द एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना, 4/3 पाई आर क्यूब जी। ये 4/3 पाई आर क्यूब और जी दोनों में कॉमन है, 4/3 पाई आर क्यूब और जी दोनों में कॉमन है, तो इसको अपन ने कॉमन निकाल लिया। अंदर कितना बचा बोलो, सिग्मा माइनस रो, ठीक है। ये सिग्मा क्या हो जाएगा भाई साहब, लिक्विड की डेंसिटी, और रो क्या हो जाएगी भाई साहब, सॉलिड की डेंसिटी, ठीक है। तो आपका आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब जी ओ माइनस दिस अपॉन भाई साहब कितना हो गया 6, ठीक है। 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब आपका 2/9 पाई
आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो, ये हो गया भाई साहब आपका वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। यहाँ पे आर और ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है, 2/9 पाई आर स्क्वायर जी, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर, पाई कहाँ चला गया, अच्छा दोनों का पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो आपका ये वाला पाई और ये वाला पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल लीव यू विथ v इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी, और इधर हो गया भाई साहब आपका सिग्मा माइनस रो, क्या डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम आर स्क्वायर रो माइनस डेंसिटी जी बाई आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। मीडियम वेराइज विथ टाइम, तो आपके टाइम के साथ भाई साहब ये वेरी करेगा, इनिशियली द बॉडी इज एक्सेलरेटेड एंड आफ्टर सम टाइम इट रिक्वायर्स टर्मिनल वेलोसिटी v, तो इसका भाई साहब एक टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगा, ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये आपका भाई साहब रेडियस ऑफ द बॉडी के साथ प्रोपोर्शनल होगा, द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉडी, ये सारी चीजें लिख सकते हैं भाई साहब, दैट इज व्हाई बिगर द रेन ड्रॉप्स फॉल विद अ लार्जर वेलोसिटी कंपेयर टू द स्मॉलर रेन ड्रॉप्स, ठीक है, तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के, तो आप जब बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स फॉल होते हैं इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना कि छोटे वाले रेन ड्रॉप्स के, ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द बॉडी एंड द फ्लूइड, जितना ज़्यादा डेंसिटी का डिफरेंस होगा, तो ये हो गया भाई साहब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू विच द बॉडी इज मूविंग एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, सो इफ डेंसिटी इज मच मोर, आपका भाई साहब ये वाला डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा है, द बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनल वेलोसिटी होगा, और अगर आपका ये वाला इससे ज़्यादा हो जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब बॉडी ऊपर बहने लगेगी, ठीक है, क्लियर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची वाली बिल्डिंग से अगर आप किसी फेदर को ड्रॉप करते हो तो फेदर नीचे ना जाके ऊपर चलने लगता है, क्यों, क्योंकि भाई साहब ऐसा कंडीशन होता है, इसका डेंसिटी मतलब एयर का डेंसिटी फेदर के डेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगा, तो इट विल नाउ स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, सो द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव दैट द बॉडी विल राइज थ्रू द लिक्विड, दैट इज व्हाई एयर बबल इन अ लिक्विड एंड क्लाउड्स इन द स्काई आर सीन टू मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, एयर बबल्स जो होते हैं, एयर की डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, एयर की डेंसिटी भाई साहब वाटर से कम है, ठीक है, तो आपका कैसा वाला सिचुएशन हो जाएगा, दिस इज बेसिकली द डेंसिटी, तो इसमें आपका जो है वो राइज होने लगेगा, दिस विल स्टार्ट राइजिंग, ठीक है, द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, दैट इज व्हाई एयर बबल एंड लिक्विड एंड क्लाउड इन द स्काई आर सीन टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर भाई साहब ये दोनों आपके बराबर हैं, द बॉडी रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड, और इसका आपका मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे मिलिकन का एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि एक ऑयल ड्रॉप को हमने बैलेंस किया था किसमें, एयर में, इट इज नीदर फॉलिंग डाउन और नीदर राइजिंग अप, ठीक है, और इससे हमने निकाला था चार्ज टू मास रेशियो, द टर्मिनल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, द मोर विस्कस ऑफ द स्मॉलर द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी, द टर्मिनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट थ्रू विच अ बॉडी इज ड्रॉप, कितने ही हाइट से आप ड्रॉप कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो आपका भाई साहब इससे अपन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकाल सकते हैं, अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी मालूम है तो इस v को आपने इधर रिप्लेस किया और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को इधर, ठीक है, तो फॉर्मूले यूज भाई साहब आपके क्या क्या है, f की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6 पाई, तो आपका ये विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6 पाई ओ v, और टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी दिस विल बी इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर, ठीक है, दिस, तो यहाँ पे भाई साहब ये r स्क्वायर हो गया, r इज बेसिकली द रेडियस ऑफ द बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, density of the liquid and density of the solid into g, ठीक है, so this will be 2/9 r square by rho density minus this into g, ठीक है, ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी। और रेन ड्रॉप इसका रेडियस कितना है भाई साहब 0.3 मिलीमीटर, तो अपने को फॉल्स थ्रू एयर विद अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, द विस्कोसिटी ऑफ एयर, देखो ये पॉइज में है, पॉइज वाला जो आपका होता है वो CGS में होता है, डेका पॉइज आपका होता है भाई साहब SI में, तो आपको यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो एयर R इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर विच कैन बी डन एज 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड,
नहीं दिया हुआ क्या सप्लीमेंट? थैंक यू। ठीक है, वेलोसिटी v है आपका 1 मीटर पर सेकेंड, इसको भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना है, सो दैट विल बी हाउ मच 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये आपको दिया हुआ है वैसा पॉइज में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फोर्स ऑफ विस्कोसिटी विल बी हाउ मच 6 पाई विस्कोसिटी RV। ठीक है, तो इस पूरे को करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर न्यूटन में नहीं आएगा, डाइन्स में आएगा, क्योंकि आप CGS में, ठीक है, जो आपका CGS यूनिट होता है, CGS में भाई साहब पॉइज को इस्तेमाल करते हैं फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आपका SI में क्या इस्तेमाल करते हैं भाई साहब? डेकापॉइज। ठीक है, SI में आपका डेकापॉइज होगा। तो अगर आपने CGS लिया मतलब सेंटीमीटर में सबको ला रहे हो, ग्राम में सबको ला रहे हो, सेकेंड्स में सबको ला रहे हो। ठीक है, ओके। An iron ball of radius 0.3 centimeter falls through a column of oil of density this much। ठीक है, ऑयल ऑफ डेंसिटी, तो ये आयरन बॉल है जिसमें से फॉल कर रहा है। इट इज फाउंड टू अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ दिस मच, डिटरमिन द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपका V का वैल्यू कितना है भाई साहब? 2/9 R स्क्वायर विस्कोसिटी माइनस डेंसिटी माइनस दिस। ठीक है, आपका डेंसिटी ऑफ द सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इसको अपन इधर लेकर अगर जाते हैं, G भी है ना भाई साहब, ओके, तो आपका अगर इसको इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 2/9 R स्क्वायर डेंसिटी का डिफरेंस G अपॉन भाई साहब हो गया V। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे आपको दी हुई है, कितना है? 0.5। तो 2/9 R का स्क्वायर हो गया 0.3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? 7.8, दैट इज द डेंसिटी ऑफ आयरन, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भाई साहब आपको दिया हुआ है 0.94। ठीक है, इससे आपने इसको माइनस किया और किससे मल्टीप्लाई किया? ध्यान दें, यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, इट हैज़ टू बी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने भाई साहब पॉइज यूनिट में अगर लिया हुआ है तो सबको CGS में लेना पड़ेगा। ठीक है, जनरली इन फिजिक्स वी सी अ ट्रेंड ऑफ यूजिंग SI यूनिट्स, बट दिस विल बी द ओनली चैप्टर और टॉपिक इन विच यू आर एक्सटेंसिवली यूजिंग इन CGS, क्योंकि आपका पॉइज का जो यूनिट है वो CGS में है, सेंटीमीटर और सेकंड में होंगे सारी चीज़ें, सेंटीमीटर, ग्राम्स और सेकंड्स में। ठीक है, तो अगर आपका 9.8 है, G को आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। आप ऐसे भी डेकापॉइज में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेकापॉइज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू। सो दिस इज 268.9 पॉइंट्स। ठीक है, डेकापॉइज पूछूं तो कितना हो जाएगा? हाँ नहीं, इसका ही डेकापॉइज कितना हो जाएगा? हाँ 26.8 बोला कर रहा हूँ भाई, 26.8। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे करते हैं, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन एन एयर बबल ऑफ डेंसिटी दिस एंड दिस इन डायमीटर राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे भाई साहब आपका देखो ऐसा यूनिट आ रहा है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्या है? kg पर मीटर क्यूबिक है। इसको आपको भाई साहब छेड़खानी करके किस में लाना पड़ेगा? फिर मीटर में लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी उसका किस में होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में या kg पर मीटर क्यूबिक में। ठीक है, सो ये होगा भाई साहब आपका kg, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में 0.9। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है भाई साहब, देख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी अगर आपको दिया हुआ ये कितना है भाई साहब? आपका 0.9 दिया हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, तो ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर तुम CGS ले रहे हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, अगर तुम क्या ले रहे हो? kg पर मीटर क्यूबिक में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बोलो 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है ना। तो इसको अगर अपन को ये यूनिट में तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू 1000 या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक में। आइडियली यहाँ पे सारे कंडीशंस आपको किस में दिख रहे हैं? SI यूनिट में दिख रहे हैं। आपका आंसर डेकापॉइज में आप ला सकते हैं। ठीक है, डेकापॉइज आपको, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, राइज इन लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है, न्यूटन सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मतलब आपका क्या हो गया? डेकापॉइज ही है। ठीक है, ये जो विस्कोसिटी आपको दी हुई है इसका दूसरा मूल्यांकन क्या हो जाएगा? दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा? डेकापॉइज।
न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो रही बात आपकी यहाँ पे किसको चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ रेडियस को चेंज करना है, ठीक है। रेडियस को चेंज करेंगे 0.8/2, ठीक है। ये मिलीमीटर में, तो आप इसको किस में लाएंगे भाई साहब, मीटर में, ठीक है। तो आपका विस्कोसिटी कितना हो गया 0.15, और जी आपका 9.80 रखेंगे इसमें, यहाँ पे 980 करने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, तो देखो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0.9 into 10⁻³ दैट इज 900 kg per meter cubic। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिया तो आपका यूनिट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में होगा। अगर आप 1000 kg पर मीटर क्यूबिक ले रहे हैं तो आपका आंसर भी वैसा kg पर मीटर क्यूबिक में होगा। और सवाल के तमाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा ही यूनिट ही है, तो ऐसा यूनिट में ही चले हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 900 kg पर मीटर क्यूबिक। डेंसिटी ऑफ द एयर बबल भाई साहब कितना हो गया, 1 kg पर मीटर क्यूबिक दिया हुआ है आपको, ठीक है। सारा सब कुछ ऐसा यूनिट में, इसी से आपको छिड़कानी करनी है क्योंकि यही इकलौता आपको मिलीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो 0.4 into 10⁻⁻3। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई साहब, r²g। तो ये सारे वैल्यूज पुटअप करोगे तो ये आ गया कितना, 0.0021 मीटर पर सेकेंड। समझम। द नेगेटिव साइन शोज दैट द एयर बबल विल राइज अप। यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन क्यों आया है बता सकता है कोई, आई वैष्णवी, नेगेटिव साइन क्यों आया है, हाय मीनू, जल्दी जल्दी फटाफट भाई साहब, अब भी तो पढ़ा अपन ने। नेगेटिव साइन मतलब जो डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, अगर डेंसिटी ये पार्ट के लिए नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो ऊपर जा रहा है, बस समझ में आ रहा है वैसा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट्स गोइंग अप। नेगेटिव साइन शोज दैट द एयर बबल विल राइज अप। आपको जो बुदबुदे दिखते हैं पानी के अंदर वो ऊपर इसीलिए जाते हैं क्योंकि एयर की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। ये वाला जो आपको आएगा ये आपको नेगेटिव ही आएगा, एंड दैट्स द रीजन दे विल गो अप। क्लियर हम पीपल, ठीक है, ओके। तो आपका हो गया भाई साहब ये दिस, एंड दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द टर्मिनल नेगेटिव साइन शो, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल इन वाटर। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एयर बबल इन वाटर आपको चाहिए, सो दिस विल बी 0.348, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। एयर बबल का टर्मिनल वेलोसिटी इन एयर हो गया, एयर बबल का टर्मिनल वेलोसिटी इन वाटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसका, ठीक है। 1 kg पर मीटर क्यूबिक इसका है डेंसिटी, और 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है किसका डेंसिटी, वाटर का। तो दिस विल बी द क्लियर पीपल। बहुत बढ़िया। तो कौन से में ज़्यादा जल्दी ऊपर जाएगा, वाटर, एयर बबल एयर में या वाटर में, कौन से में जल्दी ऊपर जाएगा भाई साहब। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये 0.0021 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे देखो ताबड़तोड़ जाएगा भाई साहब, इसीलिए आपको पानी में बुदबुदे फटाफट ऊपर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। बहुत बढ़िया। जिनका क्लास उधर है वो उधर जाएंगे,